وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم خواتین و حضرات، میرے بچوں، میرے بچیوں، بیٹھوں اور بیٹیوں، میں آپ سب لوگوں کو شاباش دیتا ہوں کہ آج اس گرمی میں آپ مظلوم فلسطینیوں کے لیے پاکستان کے دل ڈی چوک آئے ہیں اور ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غزہ کے اندر جو بدترین درندگی اور سفاکیت ہو رہی ہے، حکومت پاکستان آگے بڑھ کر عالمی برادری کو ساتھ لے کر اس کو روکے۔ ہم اقصیٰ کے لیے نکلے ہیں، ہم فلسطین کے لیے نکلے ہیں، ہم غزہ کے مظلوموں کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنی ضمیر کی آواز پر نکلے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ میں آپ سب طلبہ طالبات کو، خواتین کو، فرزندان اسلام کو، اپنے نوجوانوں کو شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم 19 دنوں سے اس دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت ہمارا مطالبہ کہ غزہ کو بچائے، رف آپریشن کو بند کرے، اس کے اوپر غور نہیں کر رہی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم نے پولیس کے اس حصار کو توڑ کر وزیر اعظم کے گھر تک جانا ہے تو جاؤ گے؟ پولیس سے لڑو گے؟ آہنی دروازے توڑو گے؟ وزیر اعظم ہاؤس پہنچو گے؟ جیل جاؤ گے؟ ڈنڈے کھاؤ گے؟ تشدد برداشت کرو گے؟ انشاءاللہ آپ کا جذبہ قابل دید ہے، آپ جرأت مند اور بہادر ہیں۔ ہم نے حکومت کو 3 مطالبات بنیادی طور پر پیش کر دیے ہیں۔ میں آپ کو بھی اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ہم نے وفاقی وزیر جو وفاقی حکومت کے نمائندے تھے اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آئے تھے، ان کو پہلا مطالبہ یہ پیش کیا کہ اسماعیل ہانیہ نے وزیر اعظم پاکستان کو 2 خطوط لکھے ہیں، آپ نے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کو فون کرے، ان کو بتا دیں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بتا دے ان کو، یہ کنوے کر دے ان کو، یہ پاکستانی قوم کی نمائندگی ہے۔ آپ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ہیں؟ آپ حماس کے ساتھ ہیں؟ آپ فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ کریں گے؟ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جنگ کریں گے؟ آپ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں؟ یہی ہمارا پہلا مطالبہ تھا۔ لا الہ الا اللہ، سپر پاور اے خدا، لا الہ الا اللہ، سپر پاور اے خدا، لا الہ الا اللہ، یہی ہمارا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ مختلف ممالک فلسطین کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے ہیں، یہاں تک کہ 2 دن پہلے میکسیکو بھی فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بن گیا۔ تو پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پاکستان، اقبال کا پاکستان جو فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، قائد کا پاکستان جو فلسطین کے لیے رقومات بھی بھجوا رہا تھا، اسلحہ بھی بھجوا رہا تھا، وہ پاکستان جس نے 1973 کی جنگ میں پاکستان کی ایئر فورس نے اسرائیل کے 2 جہاز مار گرائے تھے، نیوکلیئر پروگرام والا پاکستان، میزائل پروگرام والا پاکستان، وہ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بنے اور بین الاقوامی عدالت میں فلسطین کا وکیل اور مدعی اسرائیل کے مقابلے میں بنے۔ یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ یہی ہمارا دوسرا مطالبہ تھا۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ آپ ایک بحری جہاز ہمارے لیے انتظام کر لے، ہم خود اس پہ بیٹھیں گے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ
बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने खवातीन के साथ हम इमदादी सामान खुद जमा करेंगे। उसमें इमदादी सामान और पाकिस्तान हमारी सहूलतकारी करे। हम समंदर के रास्ते गजा जाएंगे, चाहे इसराइल हमें मिसाइल मारे, लेकिन हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे और एक फ्लोटेला तरतीब दे। ये हमारा तीसरा मुतालिबा था। आप लोग इस मुतालिबे को कबूल करते हैं कि पाकिस्तान फ्लोटेला तरतीब दे, नाकाबंदी को तोड़े और फलस्तीन तक इमदादी सामान पहुंचाए। इन्हीं के लिए हम यहाँ 19 दिनों से धरना दिए बैठे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे रोमान शहीद ने इसी के लिए कुर्बानी दी। हमारे बहुत ही प्यारे साथी इमरान शेख ने इसी के लिए कुर्बानी दी। वो शुहदाए फ़लस्तीन हैं, शुहदाए अक्सा हैं, शुहदाए गज़ा है। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और इमरान शहीद का खून और रोमान शहीद का खून रंग लाएगा। अक्सा आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ 40,000 लोग शहीद हो गए, 10,000 मलबे तले हैं। उन बच्चों का क्या हाल होगा जिनके वालिदैन मलबे के नीचे हों और वो मलबे के ऊपर अपने अम्मी अब्बू को तलाश कर रहे हैं। उन माओं का क्या हाल होगा जिनके जिगर गोशे मलबे के नीचे हो और उनके चीखें उनको सुनाई दे रही हो। कितनी दुख की बात है। वालिदैन अपने बच्चों के टांगों और बाजुओं के ऊपर नाम लिखते हैं ताकि अगर ये टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो हम इनके टुकड़ों को पहचान सके। ए जालिमों, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है। ए जालिमों, जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा है। ए जालिमों, छोटे छोटे शिरखार बच्चों के गले काटे जा रहे हैं। तुम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, तुम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारे पास असलहा है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम हरकत क्यों नहीं करते? तुम कैसे लोग हो? तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम जिंदगी कैसे जीते हो? तुम खाते कैसे हो? तुम सोते कैसे हो? हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है। हमारे घर में सोग है, हमारे घर में मातम है। हमें तो रात को सोते बच्चों की चीखें सुनाई देती है। हमें तो दिन को जागते अपनी बहनों और खवातीन की वो फरियाद सुनाई देती है। तुम क्यों नहीं उठते? 80 लाख फौज हर किस्म के असलहे से लेस ये 8 माह से कत्ल-वारतगरी का ये तमाशा देख रहे और खामोश है। ये बुज़दिली है, ये बेगैरती है। आप देखें 1300 मास ग्रेव, 1300 इज्तिमाई कब्रें। और आपको पता है उन इज्तिमाई कब्रों में जो लाशें थी वो बेचारे अस्पताल से उठाए गए थे। उनके हाथों में किनोला था, किनोला। उनके हाथ पांव बांधे गए और बेदर्दी से कत्ल किए गए। कितने बेबसी के मौत मारे गए, कितने बेबसी के साथ कत्ल कर दिए गए। हुक्मरान क्यों नहीं जागते? जर्नल क्यों नहीं जागते? ये जो 8 माह में 40,000 लोग कत्ल हुए हैं, इसमें इसराइल के साथ आलम इस्लाम के हुक्मरान और जर्नल बराबर के शरीक हैं, बराबर के शरीक हैं। इस्राइल का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इस पार है, उस पार है, इसलिए मैं इनसे कहता हूं, उठो। क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि आखिरी फलस्तीनी बच्चा भी कत्ल कर दिया जाए? अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 6 लाख बच्चे भूख से मौत के दहाने पर है। उन माओं का क्या हाल होगा जिनके बच्चे भूख से तड़प रहे हों और उनके पास देने के लिए कुछ ना हो। बंद करो इस जुल्म को, बंद करो इस दरिंदगी को। शहबाज शरीफ साहब,
आसिम मुनीर साहब, उठो उठो, इस जुल्म को, इस दरिंदगी को बंद करो, अपने आलम इस्लाम को अपने साथ उठाओ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करता हूँ कि वो हमास एक इलेक्टेड बॉडी है, हमास को तस्लीम करे, इस्माइल हानिया को फोन करे, हमास की हुकूमत को तस्लीम करे और खुलकर कायद आजम की तरह, कायद आजम के पाकिस्तान की तरह शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर वो हमास के साथ और इस्माइल हानिया के साथ क्या हो जाए, वरना पाकिस्तान के अवाम इन हुक्मरानों और जर्नेलों को किसी सूरत माफ नहीं करेगी। आखिरी बात ये करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इस पूरे जंग के जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका ने सिर्फ एक केस में 26 अरब डॉलर असलहा इसराइल को दिया है। अभी रफा में जो बमबारी हुई GBU-39 अमेरिकी बम इस्तेमाल किए गए, जिससे इंसान जिंदा जल गए। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी असलहा, अमेरिकी सफारती प्रोटेक्शन, अमेरिकी सियासी प्रोटेक्शन, अमेरिकी सरपरस्ती से ये हो रहा है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूँ, अमेरिकी एम्बेसी का मुहासिरा क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की पार्टियों से पूछता हूँ, सियासी पार्टियों से, दीनी पार्टियों से, पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूँ, आज भी अगर अमेरिका पीछे हट गया, इसराइल कुछ नहीं है, जंग बंदी हो जाएगी। इस कत्ल गरी में जो फाइनेंसर ऑफ द जेनोसाइड है वो यूनाइटेड स्टेट है। जो सरपरस्ती इस नस्ल कुशी की हो रही है वो अमेरिका कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के पार्टियों से, समाजी तंजीमों से, सियासी दीनी तंजीमों से, अवाम से, तलबा और तालिबात से कहता हूं कि वो उठे और अमेरिकी एम्बेसी का मुहासिरा करे। पीसफुल नॉन वायलेंट मुहासिरा, धरना अमेरिकी एम्बेसी के सामने उस वक्त तक जब तक अमेरिका को पीछे हटाया ना जाए, इस सरपरस्ती से रोका ना जाए। ये मुतालिबा आपको मंजूर है? मंजूर है। मैं पाकिस्तान के तलबा और तालिबात, अपने मोहतरम ख़वातीन इस्लाम बेटियों से कहता हूँ, डी चौक फलस्तीन की आज़ादी का मोर्चा है, डी चौक अक्सा की आज़ादी का महाज है, डी चौक एहलियान गज़ा का प्लेटफॉर्म है। डी चौक आओ, अपने बच्चों के साथ आओ, अपने बेटों के साथ आओ, अपनी बेटियों के साथ आओ। तलबा भी आए, तालिबात भी आए, अवाम भी आए और उस वक्त तक आए जब तक हम गज़ा को न बचा सके।